Javed Abdi Foundation, JAF, which also stands for Journalism, Advocacy and Fun. Please subscribe to the channel, press the bell icon, like, comment, and share. Hello, everyone. My name is Shamir Ishad, and I'm the convener of Javed Abdi Foundation. We have two really special people here with us today, Arman sir and Smita ma'am. I'll be introducing them, once they're speaking, and a little bit about, the topic for today is political participation in accessible elections, and that is something that Mamu always advocated for and wanted to see. uh, there are a lot of things that he, I think, did, and he even stood for elections, and that was something that I found out recently when I started working, which was quite funny. And then I asked people ke fir kya hua, and well, they told me the whole story, and maybe we can get into that a bit later. But I would start off the session like I always do, with a young person, talking about a young person who has influenced me and made me who has been with me actually on this journey. तो मैं वरुण शर्मा को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. He is a good friend, and I met him in our first workshop, the Know Your Rights की जो पहली वर्कशॉप हुई थी दिल्ली में. मैं वरुण से वहां पर मिला था, and फिर वहां से हमारा जो we started working together, and since then he's been everywhere. You can see him at all our workshops henceforth, and from doing the smallest to the biggest thing, from taking photographs to putting up the posters, to printing the posters, to putting up the banner, to coming with me to colleges. And he's a really special person to me. And one thing I really love about him, that he's humility personified. So he has work experience, and he has tremendous work experience, but still he makes time for all these volunteering initiatives, not just for me, but other starting out NGOs, or you can say the initiatives which are starting up, and he volunteers, truly a volunteer. So Varun, if you can start the session with your experiences. थैंक यू शमीर, धन्यवाद. सो मैं जावेद अब्दी फाउंडेशन के साथ वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ कुछ समय से. एंड आज का टॉपिक जो है इलेक्शंस के ऊपर, एक्सेसिबल इलेक्शंस और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. तो उसमें आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज वॉलंटियरिंग इन लोकसभा इलेक्शन 2019. सो उसके बारे में कुछ अपना मैं अनुभव शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ. तो I was part of a special coalition team. एक coalition था CEO, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस, SDM ऑफिस, और जो दिल्ली में जो सिविल सोसाइटी है, DPOs हैं, उनका था कि एक्सेसिबल इलेक्शंस करने हैं, और एम था कि ओवरऑल PWD वोटर टर्नआउट को इंक्रीज करना है हमको. तो बेसिकली हमने स्टार्ट करा, और पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में जो कही गई थी, तो आई वाज स्टेशनड एट मदनगिर स्पेशल बूथ. एक आदर्श बूथ का एक कॉन्सेप्ट लाया था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में. तो उसमें स्पेशल बूथ्स बने थे जो कि ऐसा कहा गया था कि हाईली एक्सेसिबल होंगे, और एक तरह से बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स होंगे उसमें. तो आई वाज स्टेशनड एट मदनगिर स्पेशल बूथ, और वहाँ पे हम I was operating 3 WAVs, and we are going back and forth from the polling station to residence. तो WAVs जो नहीं जानते हैं, व्हीलचेयर एक्सेसिबल व्हीकल होता है. तो हमारा टारगेट था कि जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो वोटर्स हैं, उनको घरों से लेकर पोलिंग स्टेशन तक ले जाना है. तो we did actually provide service to some senior citizens and some people with reduced mobility as well, but not specifically people with disability. वहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ी कमी रह गई थी, और उसके कुछ कारण जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये मुझे लगता है कि एक ये था कि जो एक सरकार ने बहुत अच्छी योजना जो निकाली थी,
PWD ऐप करके एक एप्लीकेशन एंड्रॉइड बेस्ड और iOS बेस्ड एप्लीकेशन निकाली थी, इसमें वोटर जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के और उनको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिल सकती है। तो ऐसा प्रावधान था उसमें। तो बट बहुत सारे जो वोटर्स थे, हमारे जो वोटर्स थे, PWD वोटर्स थे, वो नहीं रजिस्ट्रेशन कर पाए, क्योंकि उसमें कभी कभी इसका सर्वर डाउन हो रहा था बहुत बार, और कभी कभी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था आईडीज को। तो बहुत सारे हमारे वोटर्स रह गए थे उस वक्त। जहां तक मुझे पता है, मैं दिल्ली के बारे में बता सकता हूँ, अदर पीपल कैन टॉक अबाउट देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, लेकिन दिल्ली की सिचुएशन में आपको बता सकता हूँ। मैं साउथ डिस्ट्रिक्ट में देख रहा था, तो वहां पे ये एक दिक्कत आई थी, तो वोटर टर्नआउट उतना मैंने नहीं देखा। बाकी जगह पे मुझे पता नहीं, क्या पता हुआ हो। सेकेंडली, एक जो सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी, वो ट्रेनिंग्स था। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग हो रही थी, तो हम जब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शंस की बात होती है, तो वो बहुत सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बहुत हाई होती है। जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है इसको, इलेक्शंस को एज अ ड्यूटी। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसमें काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब सीरियसली लेते हैं उसको, अकाउंटेबिलिटी होती है उसमें। क्योंकि तो उसमें एक चीज मैंने देखी, जब हम ट्रेनिंग में, जब हम सेंसिटाइजेशन सेशंस कर रहे थे, तब उसमें वो ग्रैस्प नहीं कर पा रहे थे नॉलेज, मेरे ख्याल से बहुत सारे पब्लिक ऑफिशियल्स या क्लरिकल लेवल पे, या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जिनका जैसे सेक्टर ऑफिसर होता है, AROs होते हैं, ROs होते हैं, तो उनका ध्यान अपना, जो की प्रायोरिटी होती है वो अपना काम से होती है, जो इलेक्शंस में वो काम कर रहे होते हैं। डिस्पोजल ऑफ EVMs, हाउ टू ऑपरेट EVMs, इन सब चीजों पे, VVPAT पे ज्यादा ध्यान होता है। स्पेसिफिकली अगर हम सेंसिटाइजेशन सेशंस कर रहे हैं, तो उनका ध्यान उस वक्त नहीं था। और दिल्ली में ऐसा था कि 1000 की तादाद में लोग थे, इतने सारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स थे, भारत सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। हमने देखता है, देखा है कि डेपुटेशन पे आते हैं लोग, तो उनका प्रायोरिटी वो नहीं होता है उस वक्त, कि हम सेंसिटाइजेशन सीखें। मैंने खुद देखा था, ऑब्जर्व करा था, उनका फोकस नहीं था उस वक्त कि हम देखेंगे व्हीलचेयर कैसे ऑपरेट होती है, इतने डिग्री का रैंप होता है। पुलिस के साथ भी सेम मेरे ख्याल से यही है। और मेरे ख्याल से वो एक समय भी ऐसा होता है कि बहुत क्योटिक होता है, और बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, और हम एकदम लास्ट मोमेंट में उनको बता रहे होते हैं कि ये सब चीजें। तो एक ये इशू मैंने ऑब्जर्व करा कि शायद ये वाला तरीका सही नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच ली जा सकती है इलेक्शंस को लेकर के, जहां तक सेंसिटाइजेशन की बात है। और हाँ, तो बेसिकली यही था कि जो ये जो इसको हम एज अ अपॉर्चुनिटी, ये लॉन्ग टर्म है सेंसिटाइजेशन का, जब हम बात करते हैं कि जो प्रोसेस है ये लॉन्ग टर्म होगा, इसको एकदम एडहॉक बेसिस पे करेंगे उस वक्त, तो कुछ लोगों को जाएगा मैसेज, मगर बहुत बड़ी संख्या को नहीं जाएगा। ये मैंने खुद ऑब्जर्व करा। जो जो टेंट्स लगे थे, सरकार ने लगाए थे, उसमें बहुत सारी चीजें। तो जो सेंसिटाइजेशन सेशन होता है, वो एक पार्ट होता है पूरी ट्रेनिंग का उनका, वो पूरी चीज नहीं होती है। तो उसमें वो अपना प्रायोरिटी भी देखते हैं कि हम प्रायोरिटी पे क्या रखें। तो वो मैंने देखा कि उनकी प्रायोरिटी पे था नहीं, लोग ध्यान नहीं दे रहे थे जब हम समझा रहे थे, या दूसरे DPO समझा रहे थे उनको उस वक्त, NGO समझा रहे थे, उनको ध्यान नहीं था उस वक्त। और ये चीज मैंने सेम, जब मैं बहुत सारे लोगों को जब अकम्पनी करा मैंने स्पेशल बूथ्स में, मैं स्पेशल बूथ्स की बात कर रहा हूँ, जो आदर्श मॉडल जो था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में, तो उसमें वहां पे मैंने देखा कि वहां पर भी, जैसे अब हम कहते हैं कि व्हीलचेयर के लिए इतनी जगह होनी चाहिए, जहाँ पे EVM रखी हो जो कि व्हीलचेयर आ सके, ये सब चीजें मैंने नहीं देखी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। और जब हम बात करते हैं कि उनको बेसिकली साइन लैंग्वेज अगर बता रहे हैं ऑफिशियल्स को, बेसिक साइन लैंग्वेज बता रहे हैं जो उस वक्त काम आ सकती है, तो वो भी मैंने देखा कि एब्सेंट था, उनको नहीं था उसके बारे में नॉलेज। एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी जो सरकार ने उस वक्त रखी थी, कि सरकार की तरफ से भी थी, वो ये था कि उसमें उनका ई-रिक्शा का प्रयोग कर रहे थे वो। तो मेरे ख्याल से वो एक्सेसिबल नहीं रहता है ई-रिक्शा, जब हम बात करते हैं कि हम मोबिलिटी प्रोवाइड करेंगे या पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो ई-रिक्शा वहाँ पे काम नहीं आता है। ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी। तो बहुत कुछ है वैसे तो कहने को, मगर मेरे अभी जो दिमाग में आ रहा है, मैं एकदम Thank वही you. कह रहा हूँ। Yeah, thanks, Varun.
शुक्रिया। आपने काफी सारे पॉइंट्स मेक करे, जो स्पेशल बूथ के बारे में बात करी, फिर आपने जो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी थी वो सक्सेसफुल थी, बट जैसा कि आपने कहा कि ई रिक्शाज यूज हो रहे थे, तो आई थिंक नाउ द एक्सपर्ट्स आर हियर, एंड जो भी जितने भी आपने पॉइंट्स मेक करे हैं बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं, बिकॉज यू वर एट द ग्राउंड लेवल एंड वर्किंग विद, इवन आई थिंक आपने बताया था कि धरियाल सर के साथ भी काम कराया आपने, एंड दैट टाइम डॉक्टर सत्येंद्र सिंह वाज आल्सो rapidly helping out, जितना कि आपने मुझे बताया था. JAF is a youth led initiative. We deeply appreciate the support of all our interns and volunteers. Thank you. You can follow us on Facebook at Javed Abdi Foundation, and you can tweet us at Rishad Shimmer.